عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور تصاویر کے حوالے سے تفصیلات اور اس پر تفسیریں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح اس وقت جو ہے دلی کے حالات بہت ہی خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تمام تر راستے بند کیے جا چکے ہیں، افراتفری کا ماحول ہے۔ تو وہیں پر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے صدر محبوبہ مفتی پی ڈی پی کی صدر کو ایک بار پھر نظر بند کر دیا گیا ہے۔ نصف اسرائیلی کیا چاہ رہے ہیں امریکہ سے؟ ہندوستانی بحریہ کا میگ 29 سمندر میں گر کر تباہ ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو ممبئی راج بھون کی مسجد میں نماز جمعہ کی اجازت دینے کے مطالبے پر سرکاری ذرائع نے کیا کہا ہے؟ کہا ہے کہ مسجد کی موجودگی سے ہی انکار کر دیا ہے۔ ممبئی سے آ رہی خبریں ہیں اور بنگلور سے کچھ تصاویر وائرل ہو رہی ہیں۔ گجرات کووڈ اسپتال کے ICU میں آگ لگنے کا واقعہ پیش ہے۔ بہت ساری چیزیں ناظرین، ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں، اور ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بنگلورو لے چلنا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، کس کس طرح کی شرارتیں ہوتی ہیں اور کیا کیا ہوتے ہیں یہ آپ اس بورڈ سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک کمپاؤنڈ پر یہاں پر لکھا گیا تھا کہ ڈو ناٹ فورس اس ٹو انوائٹ لشکر طیبہ اینڈ طالبان ٹو ڈیل وتھ سنگیز، یعنی اس کا مطلب یہ نکل کر کے آ رہا ہے کہ ہمیں اس بات کو لے کر کے مجبور نہ کریں کہ لشکر طیبہ کو یا پھر طالبان کو ہم لوگ یہاں پر انوائٹ کریں تاکہ سنگیوں کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ ان سے وہ نمٹ سکیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے لشکر زندہ باد #، کے ساتھ اس کو جو ہے لکھا گیا ہے۔ یہ معاملہ بہت زیادہ گرماتا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں طالبان اور لشکر طیبہ کو کس انداز میں ملک بھارت میں دیکھا جاتا ہے۔ بنگلور ایک حساس علاقہ مانا جاتا ہے اور ہمیشہ سے یہاں پر الگ الگ طرح کی خبریں بنگلور سے نکل کر کے آتی ہیں۔ فرقہ وارانہ فسادات کے لیے بھی بہت بدنام یہ شہر ہے، اس کے آس پاس کے علاقے ہیں۔ ایسے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک کمپاؤنڈ میں آخر اس طرح کی شرارت کون کرے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہی تنظیمیں ہیں جو اس وقت ہندو مسلمانوں میں یا پھر مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں الگ الگ ناموں سے۔ یہی وجہ ہے کہ کمپاؤنڈ میں لشکر طیبہ اور طالبان اس انداز میں لکھ کر کے چلے گئے کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں مجبور نہ کریں ان کو انوائٹ کرنے کے لیے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ فی الحال اس کو جو ہے پوری طرح سے کور کر دیا گیا ہے، پینٹنگ مار کر کے اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ وہ تصویر بھی سامنے آئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن پولیس نے کہہ رہی ہے کہ ہم CCTV کیمراز کو جو چیک کر رہے ہیں کہ آخر یہ شرارت کس نے کا اور کس کا یہ معاملہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ناظرین کچھ تنظیمیں ہیں، کچھ ہندوتوا کہیں یا پھر کچھ ایسی طاقت ہے جو لگاتار کسی نہ کسی بہانے سے جو ہے وہ مسلمانوں کو نشانے پر لینے یا ان کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی شرارتیں کرتے ہی رہتے ہیں۔ یہ بنگلور کی ہوئی خبر۔ تو آئیے میں آپ کو لے چلوں اس وقت کیرلا کے کوزیکوڈ انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں، جہاں پر 364 گرام سونا 24K گولڈ جس کی 18 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے قیمت، وہ ضبط کر لیا گیا ہے۔ میں اصل میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ مختلف ایئرپورٹوں میں الگ الگ انداز میں سونا اسمگل کرنے کی تصاویر سامنے آتے رہتے ہیں۔ اس بار سونا اسمگل کرنے کے لیے جو طریقہ استعمال کیا گیا ہے وہ پاور ایکسٹینشن ڈیوائسز ہے۔ جی ہاں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیگیج کی چیکنگ کے موقع پر جو ہے کس طرح سے جو ہے اس پاور ایکسٹینشن والے ڈیوائس کو نکال کر کے اس کے اندر بہترین انداز میں اسکرو جس طرح رکھا جاتا ہے اس طرح رکھنے کی کوشش کی گئی۔ بالآخر جو ہے اس کو کسٹم افسران نے جو ہے ضبط کر لیا اور پکڑ لیا۔ یہ حالات ہیں ہندوستان کے مختلف ہوائی اڈوں سے اس طرح کی جو ہے سونا اسمگل کرنے، بالخصوص سعودی اور دبئی اور قطر، اس طرح کے عرب ممالک سے جو لوگ آتے ہیں وہ جو ہے سونا اسمگل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، میسور سے ایسی خبر آ رہی ہے جس خبر کو لے کر کے محسوس ہوتا ہے کہ جو ہے اس قوم کو لوٹنے والے خود اپنے ہی لوگ ہیں۔ کرناٹک کے تاریخی شہر میسور میں ان دنوں وقف کی ملکیت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ انڈے شاولی کی 1 ایکڑ زمین سے زائد زمین کی نیلامی ہو رہی ہے۔
अंडे शाह वली की मिल्कियत के साथ क्या मैसूर की कदीम ईदगाह की भी नीलामी होगी? ये असल सवाल है। इसमें कोई दूसरा दुश्मन नहीं है, ये दुश्मन अपना है और एक घर की बेदी हैं जिन्होंने जो है वक्फ की ज़मीन को किसी और की ज़मीन कह करके एक बैंक में जो है पूरी तरह से लोन लेकर के उसको रख दिया था, और जब उसकी जो है भरपाई नहीं हुई लोन की तो जो है और उसकी किस्तें नहीं भरी गई तो जाहिर सी बात है कि बैंक अपने उसूल के मुताबिक वो ज़मीन नीलाम करने के लिए निकल आया। तब जाकर के पता चला कि भाई ये किसी की निजी ज़मीन नहीं है, ये तो बस अपने वक्फ की ज़मीन है, कौम की ज़मीन है। इस पर कई तरह के खदशात और सवालात पैदा हुए। इस पूरे मामले में रिफाहुल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट सवालात के घेरे में आ चुका है। रिफाहुल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट मैसूर का एक मशहूर इदारा है। इस इदारे ने साल 2008 और 2009 में ट्रस्ट की मिल्कियत के साथ अंडे शाह वली की जगह और ईदगाह की जगह को गिरवी रखते हुए 8 करोड़ 95 लाख रुपए का कर्ज हासिल किया था। ट्रस्ट ने अपनी मिल्कियत के साथ वक्फ की 2 जायदादों को गिरवी रखते हुए केनरा बैंक से कर्ज हासिल किया और साल 2009 से अब तक कर्ज का 1 रुपया भी रिफाहुल मुस्लिमीन ट्रस्ट ने अदा नहीं किया। इस वजह से कर्ज की एक रकम बढ़ते बढ़ते अब तकरीबन 32 करोड़ रुपए हो चुकी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है क्या कुछ हो रहा है। और एक रिफाहुल मुस्लिमीन ट्रस्ट जो लोगों को धोखा दे रही थी और धोखा देने के लिए अपनी ज़मीन उसने गिरवी रखी, उससे कोई लोगों को लेना देना नहीं है, उसका अपना मामला है। लेकिन कौम की ज़मीन को, वफ़ की ज़मीन को किस तरह से जो है गिरवी रख सकते हैं। अब हाल यहाँ तक आ चुका है कि जो इस कौम की ज़मीन को जो है बैंक जो है पूरी तरह फरोख्त करने के लिए, नीलाम करने के लिए तैयार हो चुका है। अब यहाँ के मकामी लीडरान उठ करके बड़ी बड़ी भाषणबाजियाँ कर रहे हैं कि ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। लेकिन हकीकत ये है कि जो है रिफाहुल मुस्लिमीन ट्रस्ट ने अगर 8 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा उठाया है तो ये कर्जा उसने लगाया कहाँ और किसको दिया, क्यों कर दिया, कर्जा वसूल करने के दरमियान में किस किस लोगों को इस्तेमाल किया था और किस तरह की सियासी लीडरान को इस्तेमाल किया था, वक्फ बोर्ड के कौन कौन से उस वक्त जिम्मेदारान थे और उन्होंने किस तरह उनको जो है इसमें गिरवी रखने के लिए दिया गया। इस तरह के बहुत सारे सवालात निकल करके सामने आते हैं और यहाँ के लीडरान को भी, सियासी लीडरान को भी, रिफाहुल मुस्लिमीन और उससे पहले उससे जुड़े सारे के सारे जिम्मेदारान को जो है शक के घेरे में आ जाते हैं। ऐसे हालात में आवाम की जिम्मेदारी बनती है और मैसूर के मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि रिफाहुल मुस्लिमीन से और यहाँ की सियासी लीडरान से सवाल करे कि भाई 8 करोड़ रुपया आपने जो लिया है वो लगाया कहाँ और 32 करोड़ रुपए पूरे कर्ज की अदायगी होगी कैसे और ये ज़मीन बचाई जाएगी कैसे। तो नाज़रीन, ये हालात हैं, घर को आग लग गई घर के चिराग से, ये हालात बन चुके हैं इस वक्त हमारे मुसलमानों के और कौम की। नाज़रीन, आइए चलते हैं तमिलनाडु में समंदरी तूफान नेवार की जद में आ जाने से कम से कम 3 लोगों की मौत और उतने ही अफराद जख्मी हो गए। रियासती हुकूमत की तरफ से जारी एक बुलेटिन में बताया गया है कि समंदरी तूफान नेवार की जद में आ जाने से रियासत में 3 लोगों की जान चली गई जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए। मरकणम और पुडुचेरी में जुमेरात की सुबह नेवार के टकराने के बाद तेज हवाओं के साथ तूफानों के आगे बढ़ने के दौरान इससे 89 झोपड़ियों और बहुत सारे घरों जिनकी तादाद 12 घर समेत कुल मिलाकर 101 घरों को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा 26 मवेशी और बकरियां तेज हवाओं और शदीद बारिश की वजह से मर गई। तूफान की वजह से 380 दरख्तों के उखड़ जाने का पता चला है जिन्हें हटा दिया गया है। रियासती हुकूमत ने कुल मिलाकर 2085 राहती कैंप बनाए हुए थे जिनमें से 93,030 मर्द और 94,105 खवातीन और 40,182 बच्चों समेत 2,27,317 लोग ठहरे हुए हैं। हुकूमत ने इसके अलावा 921 तिब्बी कैंप, 234 मोबाइल कैंप कायम किए हैं जिनका 73,491 लोगों ने फायदा उठाया। तेज हवाओं की वजह से 19 बिजली के खंभे भी उखड़ कर गिर गए लेकिन बाद में हुक्म बिजली इन तमाम को फिर से खड़ा कर दिया। समंदरी तूफान की वजह से 14 एकड़ में फैले केले के दरख्तों को भी नुकसान पहुंचा। इस तरह से जो है यहाँ तूफान ने तबाही मचाई है तमिलनाडु में। नाज़रीन, आइए एक और खबर की जानिब आपको ले चलूं और वो है इस वक्त दिल्ली में जो हंगामा आराई जारी है वो बहुत ही खतरनाक सूरत इख्तियार करती जा रही है और ये बात हक है और ये बात सही है कि इसकी वजह से जो किसान इस वक्त पूरी तरह से रास्तों को तोड़ते हुए मरोड़ते हुए पहुंच रहे हैं। इस दरमियान में जो है पूरा का पूरा दिल्ली का आसपास का इलाका बल्कि दिल्ली के दरमियान भी जो अहम तरीन शाहराह हैं जो मुख्तलिफ रियासतों को जोड़ते हैं, वो चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली, यूपी हो, बिहार हो, वहाँ पर जो है इस वक्त बसें खड़ी हुई हैं। आम आवाम परेशान भी है लेकिन किसान अपनी जिद नहीं छोड़ रहे। किसान तहरीक को देखते हुए दिल्ली एनसीआर के दरमियान कई मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक बयान जारी करके कहा है ग्रीन लाइन पर ब्रिगेडियर होशियार सिंह बहादुर
गढ़सती, पंडित श्री राम शर्मा, टेकरी बॉर्डर, टेकरी कला और घियोर मेट्रो स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और बहुत सारे रास्तों पर जो है इस वक्त जितनी भी मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस हो सकते हैं, जो अलग अलग टुकड़ियां होती हैं, अलग अलग नामों से सबको जो है इस वक्त जो है तैनात कर दिया गया है अलग अलग बॉर्डर्स में, ताकि किसानों को दिल्ली में इंटर होने से रोका जाए। लेकिन किसान हैं कि वो मानने को तैयार नहीं। आप एक वीडियो देख रहे होंगे, पूरी की पूरी एक ट्रक ही रोक इनके रास्ते में खड़ा कर दिया गया था ताकि वो आगे ना बढ़े, लेकिन ट्रैक्टर के जरिए से जो है पूरी तरह से इस वक्त लारी को और ट्रक को नुकसान पहुंचाते हुए रास्ता बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं मंजर। तो मतलब यह है कि आप किसानों को रोक नहीं सकते, लेकिन हुकूमत, मरकजी हुकूमत लगातार इन पर जुल्म करने की कोशिश कर रही है। गिरफ्तारियां लगातार जारी हैं और उन पर पानी के बौछार लगातार जारी है। कहीं कहीं पर जो है लाठीचार्ज भी हो रही है, अलग अलग अंदाज में पथराव भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद किसान लगातार दिल्ली जाने के लिए बजिद हैं और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त बीजेपी हुकूमत किस तरह बौखलाई गई होगी। अगर दिल्ली में सारे के सारे किसान इंटर हो जाते हैं तो महसूस किया जा सकता है कि यहाँ की आम जिंदगी पूरी तरह से मफलूज होकर के रह जाएगी। और इस दरमियान इस बात को भी हम नहीं बोलना चाहिए कि अभी भी दिल्ली में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के मामलात सामने आ रहे हैं। नाज़रीन, चलते हैं श्रीनगर। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को जुमा की सुबह मुबैना तौर पर अपनी रिहाइशगाह पर एक बार फिर नजरबंद रखा गया है। जी हाँ, मौसूफा का इल्जाम है कि बीजेपी के वज़रा उनके हवारी वादी के गोशा किनार में घूम रहे हैं, लेकिन सिर्फ उनके मामले में सिक्योरिटी एक मसला बन जाता है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी इल्तिजा मुफ्ती को भी खाना नजरबंद कर दिया गया ताकि वो पार्टी के यूथ लीडर वहीदुर रहमान के घर ना जा सके। मौसूफा ने अपने ट्वीट में कहा, मुझे एक बार फिर खाना नजरबंद किया गया है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया गुज़श्ता 2 दिनों से मुझे वहीदुर रहमान पराह के घर वाक़े पुलवामा जाने की इजाज़त नहीं दे रही है। बीजेपी के वज़रा उनके हवारी वादी की गोशा किनार में घूम रहे हैं, लेकिन सिर्फ मेरे मामले में सिक्योरिटी एक मसला बना हुआ है। उन्होंने अपने एक और ट्वीट में कहा, उनके जुल्म की भी कोई हद नहीं है। वहीद को बेबुनियाद इल्जामात के पादाश में गिरफ्तार किया गया और मुझे उनके अहले खाना को दिलासा देने की इजाज़त नहीं दी जा रही। यहाँ तक कि मेरी बेटी इल्तिजा को भी नज़रबंद रखा गया क्योंकि वो भी वहीद के घर जाना चाहती थी। तो नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पीडीपी के यूथ लीडर वहीदुर रहमान पर कौमी तहकीकात एजेंसी NIA ने बुध के रोज़ दिल्ली में उनको गिरफ्तार किया और उन पर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंतखाबात के मौके पर जो हालात इस वक्त कश्मीर में हो रहे हैं, ऐसे में NIA का इस्तेमाल करते हुए किस तरह लीडरों को पूरी तरह से डराने धमकाने और उनको जो है पूरी तरह हरासा करने की कोशिश हो रही है मरकजी हुकूमत की जानिब से। नाज़रीन गिरामी, हिंदुस्तानी बहरिया का MiG-29 समंदर में गिर करके तबाह हो चुका है और पायलट की तलाश जारी है। खबर इस वक्त ऑफिशियली तौर पर आ रही है। हिंदुस्तानी बहरिया का एक MiG-29 जुमेरात के रोज़ हादसे का शिकार हो गया था। बहरिया के मुताबिक जुमेरात की शाम 5 बजे के करीब MiG-29 को हादसा पेश आया और तैयारा समंदर में जा गिरा। लड़ाका तैयारे का एक पायलट बाजियाब हो गया जबकि दूसरे पायलट की तलाश की जा रही है। बहरिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक वाक़ई की तहकीकात के अहकाम जारी कर दिए। तैयारा बतौर ट्रेनर तैयारा इस्तेमाल हुआ था। तैयारे के दूसरे पायलट को तलाश करने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पायलट को समुद्री इलाके में हवा और पानी पर ऑपरेशन चलाकर तलाश की जा रही है ताकि देख सकेंगे क्या हुआ है। ख्याल रहे कि रवां साल फरवरी में भी हिंदुस्तानी बहरिया का एक मैग गोवा में गिरकर तबाह हुआ था। वहां भी MiG-29 के मामूल की परवाज पर था, हालांकि किसी पायलट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। अब यहाँ नुकसान होने की, पायलट को किस तरह नुकसान पहुंचा, ये सारी तफसीलात अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं आई है। नाज़रीन, एक और अहम तरीन खबर जो इस वक्त मुझे आप लोगों के सामने रखना है वो है राजभवन में मौजूद मुंबई के है या नहीं है। जी हाँ, हाल ही में महाराष्ट्र में मस्जिद, मंदिर समेत तमाम मज़ाहिब की इबादतगाहों को इबादत के लिए खोल दिया गया और उसके पेश नज़र मशहूर दीनी तंजीम रज़ा अकेडमी ने जुनूबी मुंबई मुतमव्विल इलाके में वाक़ रियासती गवर्नर की सरकारी रिहाइशगाह राजभवन की मस्जिद को भी खोलने का मुतालबा किया, लेकिन सरकारी ज़राए ने किसी मस्जिद के होने से ही इनकार कर दिया। वाज़ेह है कि राजभवन से वाबस्ता अफसरान और मुलाजिमीन की रिहायशी इलाके में कदीम खूबसूरत मस्जिद की तस्वीरें मौजूद हैं और 80 के अशरे में मज़कूरा मस्जिद के 65 साल इमाम और खत्तात कुरान मौलाना हाफिज़ ग़ियासुद्दीन हयात हैं, जो कि 30 दहाइयों तक रोज़नामा इनकलाब में बहैसियत कातिब भी वाबस्ता रहे हैं और फिलहाल कातिब कुरान के लक़ब से मशहूर भी हैं। मरहूम सदर जमहूरिया अब्दुल कलाम भी उनकी सताइश करते थे।
मौलाना ग़ियासुद्दीन खान ने एक मुलाकात के दौरान बताया था कि 1977 में मुंबई आमद के बाद मुजाहिद आज़ादी मोइनुद्दीन हारिस के अजमल प्रेस से वाबस्ता हो गए थे। इसी दौरान राजभवन के डाकखाने की इंचार्ज मोहम्मद उमर कपाड़िया मरहूम प्रेस के सरबराह अब्दुर्रहमान से मिलने की गर्ज से आते थे और इसी दौरान उन्होंने राजभवन मदऊ किया और गालिबन 1979 से मौलाना ग़ियासुद्दीन वहां इमामत की गर्ज से बुलाए जाने लगे। फिर 1981 से उन्होंने रोजनामा इनकलाब में मुलाजमत इख्तियार की। उनके मुताबिक 1982 में एयर चीफ मार्शल इदरीस एच लतीफ़ सुबुकदोश महाराष्ट्र के गवर्नर थे और अक्सर नमाज जुमा और नमाज ईदैन की अदायगी के लिए राजभवन की मस्जिद में तशरीफ लाते थे, जबकि वज़ीर आला अब्दुर्रहमान अंतोले और दीगर वज़रा भी आते रहे, लेकिन मरहूम अंतोले नमाज ईदैन अंजुमन इस्लाम में अदा करते थे। उन्होंने बताया कि मज़कूरा मस्जिद राजभवन के रिहायशी इलाके में वाक़ थी और गवर्नर के सेक्रेटरी और दीगर मुस्लिम मुलाजिमीन नमाज अदा करते थे। नमाज जुमा में काफ़ी लोग आया करते थे, जबकि नमाज ईदैन की इमाम करीब में वाक़ 3 बत्ती के खतीब इमाम वहाँ करते थे। मोहम्मद उमर कपाड़िया जो कि पोस्ट मास्टर थे और नल बाजार के हाजी साहब मस्जिद की देखभाल करते थे। रसा अकेडमी ने एक बार फिर राजभवन की मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी की महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से इजाजत मांगी है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक सरकारी जराये ने वहां मस्जिद होने से इनकार किया है। हाल ही में रिहायशी इलाके में फलकबोस इमारतें तामीर की गई हैं। रजा अकेडमी के सदर मोहम्मद सईद नूरी ने कहा कि तंजीम ने गवर्नर साहब से नमाज जुमा की इजाजत मांगी और इस बात की उम्मीद है कि नमाज की इजाजत मिल जाएगी। इस सिलसिले में फिलहाल राजभवन से कोई तस्दीकनामा मौसूल नहीं हुआ है। यानी कि अगर सरकारी ज़राए के मुताबिक वहाँ मस्जिद ना होने की बात हो रही है तो फिर इसमें जो है मज़ीद लोगों को छानबीन करनी पड़ेगी, और अगर वहाँ पर इस बार फलकबोज इमारतें आ गई हैं तो किस मकाम पर वो मस्जिद थी इस बात को भी देखना होगा। बहरकैफ जो एक नया मामला इस वक्त जो है रज़ा अकेडमी की जानिब से राजभवन में मस्जिद होने ना होने को लेकर के इस वक्त जो है जिक्र छेड़ दिया गया है। नाज़रीन गिरामी, गुजरात के कोविड अस्पताल के आईसीयू में आग लगने का वाक़या पेश आया। ऐसे कई सारे मामला सामने आए, बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रियासतों में कि कोविड के लिए मखसूस अस्पतालों में आग लगने की वजह से जो है बहुत सारे मरीजों की अब तक भी जान चली जा चुकी है। अलग अलग रिपोर्टें हमने आप लोगों के सामने रखी है। अब गुजरात के राजकोट ज़िले से भी यही खबर आ रही है कि कोविड अस्पताल में जुमेरात को देर रात गई आग लग जाने से 5 मरीजों की झुलस कर मौत हो गई। हादसे में मजीद एक कोरोना मरीज की हालत नाजुक बताई जा रही है। ताहाल आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी, ताहम ख्याल है कि तिब्बी आलात में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी होगी। राजकोट शहर के आनंद बंगला चौराहे के पास जिस उदय शिवानंद कोविड अस्पताल के आईसीयू वार्ड में जुमेरात को रात के तकरीबन 2 बजे आग लगी। इसमें कोरोना के 33 मरीज ज़ेरे इलाज थे। बचाए गए मरीजों को दूसरे अस्पताल में इस वक्त मुंतकिल कर दिया गया है। इस हादसे में जान गंवाने वाले मरीजों के नाम राम सिंह भाई, नितिन भाई बदानी, सकलाल अग्रावत, संजय राठौड़ और केशुभाई अकबरी है। ख्याल रहे कि उदय शिवानंद अस्पताल को सितंबर में कोविड के मरकज के तौर पर मंजूरी दी गई थी। गुजरात के किसी अस्पताल में अगस्त से अब तक आग लगने का ये चौथा वाक़या है। यानी गुजरात में अब तक कोविड-19 के अस्पतालों में आग लगने का ये चौथा वाक़या है। चौथा वाक़या होने के बावजूद भी अभी तक किसी भी तरह की पेशगी इक़दामात और किसी भी तरह को इससे संजीदगी से ना लिए जाने पर इस वक्त वहाँ की हुकूमत पर तनकीद की जा रही है कि कोविड-19 के मरीजों के साथ आखिर क्यों इस तरह की लापरवाही इख्तियार की जा रही है। बहरकैफ नाज़रीन, ने कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने रख दी गई। इंशाअल्लाह फिर शाम में मुलाकात होगी कुछ और खबरों की तफसीलात के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्ही हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है, तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात।